fixed distance is called radius. Now ये आपका सर्कल है, this is the fixed point, this is the center supposed to by C, and this is the point P. This is a radius R. Okay, so what is a circle? It is a collection of all these points P which are at a distance R from the fixed point C. Okay, clear? अब सर्कल के केस में हमने राइट फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस स्टडी करते हुए हैं, तो इस केस में हम क्या स्टडी करेंगे? इन दिस केस वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अगर हम ये कंसीडर करें कि जो फिक्स पॉइंट है सेंटर, दैट सेंटर इज विद कोऑर्डिनेट्स hk, ओके, एंड दिस p इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. p जो है इट इज अ कलेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस सेंटर C से R के डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो P पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल पॉइंट विच इज xy. ओके, so from this we get length CP is equal to R. Is it correct? Length CP is equal to R, or you can say distance between the point C and P is equal to R. Yes, is it correct? Okay. Yes, sir. यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So you get under root of x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to R. Squaring on both sides. दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to R square. So you get x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to R square. अब ये x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to R square. This is the equation of circle. This is the equation of circle. Okay. अब एक क्वेश्चन आप लोगों से, x minus ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y minus k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रहा है. मींस इन जनरल यदि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है देन बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए जिससे हम सर्कल की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं? सेंटर या फिर रेडियस का रेडियस. So center coordinates. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड So center coordinates and radius. एंड रेडियस. ओके, हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए. हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. वी शुड नो एट विच पॉइंट सेंटर इज प्रेजेंट. ओके, और साथ ही हमें क्या चाहिए? रेडियस. उसका रेडियस कितना है? मान लीजिए आपके सेंटर के पॉइंट्स दिए सपोज 3 2, मींस देयर इज अ सर्कल सेंटर एट 3 2 और रेडियस दिया 8, रेडियस इज 8. आप ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. ओके, you can easily find the equation of circle. Now see, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर दिया है 3 2 पे, रेडियस दिया है 8. Then the equation of circle will be x minus x square plus y minus y bracket square is equal to 8 square. Okay, you will get this by applying this. X minus h, you get x minus 3 plus y minus k, you get plus y minus 2 bracket square is equal to r square, means 8 square. ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है. इसे एक्सपांड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए and see what you get. Sir, x square plus y square minus 6x plus 4y minus 47. X square plus y square minus 6 minus 4y. This will be 9 plus 4 13.
and this will be Sir, 64. minus 47. तो 66 आ रहा है. माइनस 47 आ रहा है आपका कि माइनस 51 आ रहा है? Yes, sir, 51 आएगा. Minus 51. This will be the equation of circle. Okay, this will be the equation of circle. Okay, now see, there are some important terms. Some important points. If CHK is center of circle with radius r, then equation of circle is x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to r square. ये कॉन्सेप्ट तो हमने अब लिखा, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है. हमने जस्ट यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर किया था, CH के सेंटर था, PXY was the point on the circumference of circle, radius r आएगा. Then the distance CP was r, distance formula अप्लाई किया तो हमें ये मिला. Now what if center of circle is at origin? If center is at origin, comma, then equation of circle is x square plus y square is equal to r square. This is called standard circle. This is called standard circle. ऐसे सर्कल को स्टैंडर्ड सर्कल कहा जाता है. ओके, यदि सेंटर ओरिजिन पे है, if the center is at origin, then such a circle is called standard circle. और इसकी इक्वेशन आएगी x square plus y square is equal to square of radius. आप क्लियरली देख सकते हो h और k दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, वन मोर थिंग, जब इसका डायग्राम कंसीडर करोगे तो ये रहा डायग्राम. This is x-axis, this is y-axis. Okay, center is this. Circle cuts x-axis at 2 points. इसमें से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा सपोज A, कोऑर्डिनेट्स r0. ये आएगा A डैश, कोऑर्डिनेट्स माइनस r0. ये सपोज B, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 आ रहेंगे, और ये B डैश आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस आ रहेंगे. ओके, तो ये रहे इसके कोऑर्डिनेट्स. अब क्वेश्चन है कि ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. ओके, 12th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, जिसमें हम एरियाज फाइंड करते हैं, एरियाज ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सम कर्व्स. ओके, तो वहां पे आपको ये वाला पार्ट आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ गिवन रेडियस. ओके, नो डाउट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता है, अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर. ओके, यू नो दैट. बट वहां पे एक वर्ड आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करके उसे प्रूव करना पड़ेगा. ओके, उस केस में जनरली इस तरह के सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर ओरिजिन पे है, उनका एप्लीकेशन होता है, उनका यूज होता है. ठीक है, तो ध्यान रखिए सर्कल इस तरह का रहेगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसके वर्टाइसेस है. वर्टाइसेस वो पॉइंट है जहां पे सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, मतलब ये A जहां पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, A डैश जहां पे सर्कल एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड को टच कर रहा है, B एंड B डैश. और इसके कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियस r है, तो A आएगा r0, A डैश आएगा माइनस r0, B आएगा 0 और B डैश आएगा 0 माइनस r. Any doubt in this? No, sir. Yes, any doubt in this? No, sir. Okay, तो थर्ड जो important point है वो है general equation. General equation of circle is
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy c equal to 0. This is the general equation of circle. General equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Provided g square plus x square minus c is greater than or equal to 0, or in fact greater than 0. Provided g square minus g square plus x square minus c is greater than 0. Means general equation चल ये आएगा x square plus x plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ठीक है. Condition है g square plus f square minus c it should be greater than 0. This is the condition. g square plus f square minus c is greater than 0. अगर g square plus f square minus c less than 0 या equal to 0 आ रहा है तो उस केस में सर्कल फॉर्म नहीं होगा. अगर g square plus f square minus c equal to 0 हो गया तो आपको डॉट सिंपली डॉट, और अगर g square plus f square minus c less than 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ऐसे केस में सर्कल फॉर्म नहीं होगा. ओके, क्लियर. अब जहां तक इस सर्कल की बात है, इट्स सेंटर इज C minus G minus F. Its center is C. Coordinates आएगा minus G minus F. Minus G means यहाँ पे जनरल इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है 2G, उसका नेगेटिव हाफ, और जो y का कोएफिशिएंट है 2F, इसका नेगेटिव हाफ. ओके, ये रहेंगे इसके सेंटर. एंड रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वाला जो हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, इसी का अंडर रूट लोगे तो वो रहेगा इसका रेडियस. दैट विल बी द रेडियस. ओके, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि यदि ये लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे अंडर रूट में लेस देन 0 वाली वैल्यू आएगी, और अंडर रूट में लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, नॉट पॉसिबल. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चले जाएंगे, उस केस में पॉसिबल नहीं है. और यदि इक्वल टू 0 आ रही है तो इक्वल टू 0 मतलब रेडियस 0 हो जाएगा. जब रेडियस 0 हो जाएगा तो हमें सिर्फ एक फिक्स पॉइंट दिखाई देगा, एक फिक्स डॉट जो कि सेंटर है, मतलब सर्कल फॉर्म नहीं होगा. ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? सर जी कहिए. जी कहिए. सर हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें हमारा 2gx और 2fy, और हमारा जो सेंटर है वो है -g -f, तो वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे 2gx 2fy है. सेंटर के केस में x का कोएफिशिएंट जो 2g है उसका हाफ करेंगे, और y का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे. ठीक है, मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, आई एम गिविंग द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. सी दिस, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 51 इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 51 इक्वल टू 0, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब इसके अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2g? नहीं, 2g की वैल्यू -6, x नहीं आएगा क्योंकि x तो यहाँ पे भी है. ठीक है, अब 2g -6 है तो g कितना होगा? -3. g -3 आएगा. उस हिसाब से अगर हम ये अप्लाई करें तो इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ g, सॉरी माइनस हाफ ऑफ 2g. समझ में आ रहा है? यस सर. y कोऑर्डिनेट क्या आएगा फिर? 2 2 की -2 सो +2 सर +2 आएगा. 2 आएगा. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -4 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2f है, तो f की वैल्यू -2 आ रही है. ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में दिया है नेगेटिव f, तो f की वैल्यू -2 आ रही थी, नेगेटिव f अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है,
अब आप ये फाइंड करो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये फाइंड करो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और मुझे बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड, कितना आ रहा है? 8। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर 3 2 आ रहा है और रेडियस 8 आ रहा है। ठीक है, अब आप जरा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखिए, मैंने यही दिया था, सेंटर 3 2 और रेडियस 8, आपने उसे सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई किया था, ये क्वेश्चन आ रही थी। देखिए जरा। यस सर, वही सेम है। यस सर। सही है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेंटर और रेडियस दिया था, वहां से आपने इक्वेशन फाइंड किया था। अब इस केस में मैंने आपको जनरल इक्वेशन दिया और हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो वहां से हमें रेडियस सेंटर मिला। ओके, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Is the concept clear or any doubt? क्लियर सर। चलिए तो फिर मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, वी मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। कम टू एक्सरसाइज 11.1। नाइन्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम आपने स्टडी किया था लाइन की इक्वेशंस के बारे में, जो कि जनरल इक्वेशन x प्लस वी आई प्लस सी इक्वल टू 0 था इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। 10th में थोड़ा मॉडिफाइड पढ़ा, 11th में और मॉडिफाइड पढ़ा आपने, बट अब तक टिल द 10th स्टैंडर्ड आपने सर्कल्स के इक्वेशंस के बारे में स्टडी नहीं किया था। ओके, मींस व्हाट कैन बी द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, अब वो कॉन्सेप्ट आप इस साल पढ़ रहे हो। ठीक है, नाउ सी एक्सरसाइज 11.1। First, in each of the following exercise 1 to 5, find the equation of circle with, या आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए जिसमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ थर्ड और फिफ्थ सॉल्व करें, फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। सी द थर्ड। थर्ड के केस में जो सेंटर है वो आपको क्या है, 1/2 1/4, और जो रेडियस है, रेडियस गिवन टू यू एज 1/12। ठीक है, इसके आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट you get x minus 2 1 by x minus 2 brackets x minus 1/2 bracket square plus y minus 4 bracket square is equal to 1/12 square। इसे सिंपलीफाई कीजिए और देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सिंपलीफाई करने के बाद मतलब ये स्क्वायरिंग वगैरह करोगे आप, तो इसमें नीचे अपॉन 4 आ जाएगा, इसमें अपॉन 16 आ जाएगा, इसमें अपॉन 144 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम नियरली 144 होगा सबका, आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्व इट एंड सी व्हाट यू गेट। Solve it.
Sir, x square plus y square plus 5 minus x minus 8y is equals to 16 upon 144. X square Plus y square minus x minus 8y minus plus 5 minus 8y plus 5. 8y. Yes, sir. x square plus y square minus x minus 8y नहीं आएगा, माइनस y by 2 होना चाहिए, माइनस y by 2 होना चाहिए। तो y by 2 का एलसीएम नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पे आपने x स्क्वायर बोला है ना, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। प्लस 44 by 144. If you're taking LCM here also, तो यहाँ भी कुछ नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं आएगा। यानी अब इसका सिंप्लीफिकेशन ये आएगा। अब इसका आगे अगर आपको इसे 144 में कन्वर्ट करना है, 44 by 144. ये 36 हो जाएगा फिर, अगर आप इसे 144 में कन्वर्ट करोगे। ओके, दिस विल बी 9 36 प्लस 9 45 45 माइनस 1 44, मतलब 44 by 144 आ रहा है। फोर्टी फोर बाय 144 इक्वल टू 0 आ रहा है। ये दोनों आपका 4 के टेबल में जाएगा, 4 11 एंड 36 मींस आपका फाइनल आंसर फिर ये होना चाहिए 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आंसर आ रहा है क्या? यस सर, यही है। पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर आपका आंसर ये होना चाहिए। सर इसे पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या? मतलब हम 44 by 144 तक ही नहीं छोड़ सकते? कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एट द मोस्ट पेपर में आया भी तो 2 मार्क ले आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। यस, एनी डाउट इन दिस? नो सर। यदि डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेडियस दिया है माइनस, सेंटर दिया है माइनस ए माइनस बी। सेंटर गिवन टू इज माइनस ए माइनस बी और रेडियस कितना दिया है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, फिर क्या दिया है? प्लस दिया है कि माइनस दिया है? क्योंकि मेरे बुक में वहां पे ब्लैंक है। तो माइनस है। ओके, ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या रहा है। Solve this and see what is the answer. x square plus y square plus 2ax plus 2by plus 2b square equals to 0. ठीक है, x plus a bracket square plus y plus b bracket square is equal to under root of a square minus b square square of it.
x माइनस ऑफ माइनस ए लेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, y माइनस ऑफ माइनस बी लेंगे तो y प्लस बी हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर आएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। then a square positive and a square positive get cancelled, b square जो नेगेटिव है RHS में उसे आप LHS में लिखिए, you get x square plus y square plus 2ax plus 2by plus 2b square equal to 0. This will be the answer. Yes, any doubt in this? Yes, any doubt in this? No sir. Now आगे जो क्वेश्चन है उनमें दिया है, in each of the following exercise 6 to 9 find the center and radius of the circle. इसमें 6 और 8 आप लोग ट्राई करोगे, 6 तो बिल्कुल इजी है, आप लोग इजीली बता सकते हो क्या आएगा, बाकी 7 और 9 मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। ओके सर हमें यहाँ पे अगर रेडियस लिया तो मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, डिस्टेंस बताना है। फिर से कहिए। यहाँ पे हमें रेडियस लिखा तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, डिस्टेंस बताना है। नहीं, कोऑर्डिनेट्स हमें सेंटर के बताने हैं और रेडियस तो डिस्टेंस ही है। हमें कभी रेडियस का मतलब जो एक्सटीरियर पॉइंट होगा उसके कभी डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछेंगे ना। फिर से पूछिए। रेडियस के जो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट आएगा उसका हमें कभी कोऑर्डिनेट नहीं पूछेंगे ना। नहीं, अगर पूछेंगे तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, ठीक है। अब इसमें तो आपको सिर्फ रेडियस और सेंटर पूछा हुआ है। नाउ सी 7th वन, गिवन सर्कल इज x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 equal to 0. ये है गिवन सर्कल। ओके, नाउ सी आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो ये है, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, ठीक है। अगर हम इसका यूज करें तो हमें सेंटर इजीली मिल जाएगा, -g -f। कितना आएगा बताइए? 2 और 4 2,4। ओके, और रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c, मतलब ये कितना हो गया अंडर रूट। यस, अंडर रूट 65। वेरी गुड। तो देखिए जो मेथड मैंने आपको बताया था उससे एकदम क्लियरली सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, ठीक है। अब एक मेथड ये है जिसे आप पेपर में यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द मेथड व्हिच यू कैन यूज इन द पेपर। ये रहा आपका सेंटर और ये रहा रेडियस, प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं, ठीक है। अब वो मेथड क्या है, उसमें देखिए, उसमें x के टर्म्स को साथ में ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x, y के टर्म्स को साथ में लीजिए, y स्क्वायर माइनस 8y, और जब कांस्टेंट उसे नेक्स्ट साइड पे लेके जाइए 45, ठीक है ना। से यहाँ पे 45 नेगेटिव था, अगले साइड जाके पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होता तो भी आप इसे अगले साइड लेके जाइए, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मींस x के टर्म्स साथ में लेने हैं, y के टर्म्स साथ में लेने हैं,
और जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप नेक्स्ट साइड लेके जाइए, ठीक है। इन 10th स्टैंडर्ड आपको एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा परफेक्ट स्क्वायर, कन्वर्टिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर, याद है? Yes, sir. Solving the quadratic equation by converting them into perfect squares. तो बस आपको वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है। सी देख लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया था, इसे आपने सॉल्व किया था। और इसका आंसर ये आया था, ये आंसर आया था, ठीक है। तो पहले ये प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था, इसे आपने सॉल्व किया था, इसका आंसर ये आया था, ठीक है। तो होता क्या है, जब से आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो x के टर्म साथ में रहते हैं, y के टर्म साथ में रहते हैं, और फाइनल इक्वेशन में हम x स्क्वायर y स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 6x 4y मतलब x और y का टर्म बाद में और कांस्टेंट बाद में लिखते हैं। तो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, इसमें हमने साथ में ले लिया। अब इसे आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y square minus 8y plus 16. This is equal to 45 plus 4 plus 16. Now see, ये x square minus 4x था, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 4x है ये 4x हो गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब आपने आइडेंटिटी यूज, जो आइडेंटिटी यूज करते हो आप, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, उसमें क्या b रहता है, तो ये रहा 2, ये रहा a, और b वाले पार्ट में फिर से 2 आ रहा है और लास्ट में b स्क्वायर आता है, तो 2 का स्क्वायर 4। वैसे ये है, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, 8 दिया है ना, 8 मतलब 2 इंटू 4, 2 इंटू वाई इंटू 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 को ऐड किया और आगे से ऐड किया है। समझ में आया या डाउट है? और इसे और बेटर वे में अगर समझना है या याद रखना है तो ये मेथड है कि x का जो भी आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट दिया है, क्या है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे? -4। x का जो भी कोएफिशिएंट दिया है उसका हाफ कीजिए, तो -4 का जब आप हाफ करोगे तो -2 आएगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर कीजिए तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा, वो ऐड कीजिए, यहां पे भी ऐड करना है, आरएचएस में भी ऐड करना है, ठीक है। वैसे यहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है? -8। इसका हाफ कीजिए, -4, और जब आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो 16 यहां भी ऐड होगा, आरएचएस में भी ऐड होगा, ठीक है। मतलब हम ऐसे जा रहे हैं, सॉल्व करते वक्त हम ऐसे जाते हैं, यहां से ये स्टेप आती है, ये आती है, अब हम रिवर्स चल रहे हैं, ये था इस स्टेप में, इस स्टेप में जाएंगे अभी। नाउ सी, ये आपका सीधे सीधे x -2 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया और ये सीधे सीधे y -4 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, और ये 45 + 4 + 16 ये 65 हो गया। अगले स्टेप में आप इसे कैसे लिख सकते हो, x -2 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, और 65 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन 65 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 65 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, अंडर ऑफ 65 स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर जैसे सेंटर रेडियस फॉर्म वाली जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से देखो, तो इसका सेंटर आएगा 2 4, और रेडियस आएगा √65, क्योंकि आपकी इक्वेशन ये रहती थी x - h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, तो इस हिसाब से सेंटर आ गया 2 4 पे और रेडियस आ गया √65। इज दिस क्लियर? Yes, is this clear?
बेसिकली आपके पास दो मेथड है जहां से आप प्रोसीड कर सकते हो। एक ये है कन्वर्टिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, ठीक है, और एक ये है जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, आप कोई भी मेथड यूज करो आपका आंसर करेक्ट आएगा अगर आपने सब कैलकुलेशन वगैरह सही किया है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, सिर्फ उस केस में आपको एक बात का ध्यान रखना है। नाइन्थ क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन आपको 2x² + 2y² - x = 0 दिया हुआ है। आप जब कभी भी सेंटर और रेडियस फाइंड करोगे तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे x² का कोएफिशिएंट 2 है और y² का कोएफिशिएंट भी 2 है। दिस विल नॉट डू, ठीक है। तो आप ये मेथड अप्लाई करो या ये मेथड अप्लाई करो, कोई भी मेथड जो आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। कंडीशन इज दैट कि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज x² + y² - 1/2 x = 0, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन ये आ गई, आपने थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया तो x² हो गया, y² हो गया, ये -1/2 x = 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा सजेशन है कि ये वाला मेथड अप्लाई करो और सेंटर फाइंड करो, ठीक है। तो ये आप लोग करोगे और इसी तरह से जो इससे पहले 6th और 8th क्वेश्चन है वो भी आप लोग करोगे, ठीक है। यस, एनी डाउट?